No. Yes, I have lots of questions. Yes, one of them is about trance. When I was in BK's, always on Thursday, the senior sisters were going into trance, which meant that they would go and meet Brahma Baba in subtle region and then bring the message down. जब बीके में थी तो हर गुरुवार को संदेशी जाके संदेश लाती थी सूक्ष्म वतन में जाके। What do you want to ask? I was told that subtle region doesn't exist anymore. सूक्ष्म वतन है ही नहीं अभी बताया गया है, तो फिर वो कैसे जाते थे? जो आत्मा अकाले मौत में शरीर छोड़ देती है वो थोड़े समय के लिए या एवरलास्टिंग के लिए सूक्ष्म शरीर धारण करती है। The souls who leave their body untimely take a subtle body for temporary period or everlasting period. वो दूसरों में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाती है। They enter into other body and play their part. वो उनका अंतःवाहक शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उससे पार्ट बजाती है। They have subtle body and they play their role. They play their part. They play their part through that. और वही आत्माएं हम बच्चों में भी प्रवेश कर रही है। And these souls enter we souls, we children. तो हमारे दिमाग में जो सूक्ष्म संकल्प चलते हैं उनके साथ मिलकर के हमारी सूक्ष्म संकल्पों की दुनिया बनती है। जिस सूक्ष्म संकल्पों की दुनिया में हम बाहर की दुनिया भूल जाते हैं। So the subtle thoughts that come into our mind, by combining with those souls, the world of subtle thoughts is created. We forget the outside world in that world of subtle thoughts. स्वर्ग की दुनिया याद करते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स याद करते हैं और अपनी सेवा के नए नए प्लानिंग्स बनाते हैं। बाहर की दुनिया भूल जाती है, उसी को सूक्ष्म वतन कहते हैं। हाँ। We remember the heavenly world. We remember the points of knowledge. We make our new plans for service, and the outside world is forgotten. That itself is called the subtle world. माना ब्रह्मा बाबा हैं, विश्व किशोर भाऊ हैं, मनमोहनी दादी हैं और चंद्रमणि दादी हैं, जिन्होंने अकाले मौत से शरीर छोड़ा है। वो शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करती है। सूक्ष्म से हाँ थोड़ा थोड़ा बताओ। The dadis जो भी which are named by Baba, they after leaving their bodies, they for a temporary period hold the subtle body. Not temporary but everlasting. Everlasting. हाँ हाँ हमेशा के लिए उन्होंने धारण कर लिया सूक्ष्म शरीर, जब तक संगम युग है। They get into the subtle body for everlasting period. और सूक्ष्म शरीर का माना है कि मन की एक स्टेज है, सूक्ष्म स्टेज। उस मन की सूक्ष्म स्टेज में वो हम बच्चों में प्रवेश कर रही है। हम बच्चों में प्रवेश करके वो हमारे अंदर संकल्प क्रिएट करती है। हाँ। Subtle body means there is a subtle stage of mind. In that subtle stage, they enter and create thoughts in children. Advanced party. Children in advanced party. हाँ प्रवेश करती हैं और प्रवेश करके दोनों के संकल्प मिलकर के
स्वर्ग के बारे में प्लानिंग बनाते हैं, सेवा के बारे में प्लानिंग बनाते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं, वो सारा मंथन मिलकर के सूक्ष्म दुनिया बनती है। The souls enter the body and their thoughts, both of their thoughts combine together and they make plans for heaven as well as they churn the knowledge together and make plans for service, etc. And all this together combines and form a subtle world. हाँ, ये सूक्ष्म वतन कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क का सूक्ष्म वतन। और जो हम प्रैक्टिकल एक्ट में आते हैं वो है स्थूल वतन। This is called subtle world, the subtle world of our mind, and the act that we perform practically, that is called practical world or corporeal world. तो उसमें जो आत्माएं स्थूल शरीर छोड़ने वाली हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा, मनमोहिनी दादी या मम्मा, ओम राधी मम्मा, वो आत्माएं हमको देखने में नहीं आती। सूक्ष्म शरीर है उनका, लाइट का शरीर है। वो लाइट का शरीर होने के कारण वो इस साकार दुनिया से ऊपर की ओर इस दुनिया में निवास है उनका। The souls who leave their body, like Brahma Baba, Manmohini Dadi, and Om Radhe Mama, we cannot see those souls. Their subtle body is a body of light. They reside in a world above the corporeal world. जब इस सृष्टि में आती हैं तो हमारे बीज रूप संकल्पों से, बीज रूप आत्माओं से मिक्स होकर के एक हो जाती है। When they come into this world, they mix with the seed-like souls and become one. और उस स्टेज में वो आत्माएं एक तरह से हमारे संकल्पों से संघर्ष भी करती है। उनके संकल्प और हमारे संकल्प टकराते भी हैं। And in that stage, those souls clash with our thoughts. That is, their thoughts clash with our thoughts. जब तक उनके संकल्प हमारे संकल्पों से टकराते हैं, एक नहीं बनते हैं, तब तक ये संघर्ष चला जा रहा है बी केज और पी बी केज का। As long as their thoughts clash with our thoughts, the struggle will go on. The struggle between PKs and PBKs. ये जैसे दो पार्टियां हो गई। एक पार्टी वो है जो सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों की है, एक शरीर साकार शरीर धारण करने वालों की है। साकार शरीर धारण करने वालों के भी सूक्ष्म मन की स्टेज है। मन के सूक्ष्म संकल्प चलते हैं, जिस मन के सूक्ष्म संकल्पों में बाहर की दुनिया बिल्कुल भूल जाती है। So there are two parties. One, those who have subtle bodies, and the other who have practical bodies. They also have a subtle stage of mind, wherein they have subtle thoughts, and in that subtle stage of mind, they forget the outside world. मनन चिंतन मंथन चलता है, नई दुनिया का संकल्प चलता है, नई दुनिया की प्लानिंग चलती है, वो सब चलता है। उसी को सूक्ष्म स्टेज हम लोगों की कहा जाता है। और वो लोग, उनको चर्निंग करने के लिए अलग से ज़रूरत नहीं है। वो जो हम चर्निंग करते हैं वही उनकी चर्निंग हो जाती है। I think I have to ask somebody to. थोड़ा अनुवाद। We've got it recorded, don't we? अनुवाद कर थोड़ा सा। Wherein the churning of knowledge take place, and the thoughts of new world come into our mind, and we plan for the new world. So these thoughts, that is our subtle stage. They need not churn. Our churning itself is their churning of thoughts. अच्छा, जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, जो शरीर छोड़ चुकी हैं, वो आत्माएं भावनावादी हैं, बुद्धिवादी नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो भावनावादी आत्मा होने के कारण उनको साक्षात्कार होते रहे। वो साक्षात्कारों के आधार पर जैसे चलती रहे, जैसे हम स्वप्न देखते हैं, ऐसे ही उनके साक्षात्कार होते रहे। वो साक्षात्कारों की दुनिया में रहने की आदी हो गई हैं, इसलिए बुद्धिवादी नहीं है। बुद्धिवादी न होने के कारण उनके
सूक्ष्म शरीर जो हैं वो सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहे हैं, उनको साक्षात्कार के आधार पर बाबा ने उठाया है और हमको बुद्धि के आधार पर उठाया है। बताओ। Those who go in trance, na, they are not intellectual souls. They are not? Intellectual souls. Okay. And that is why they work on emotional grounds, as well as advanced party souls are on intellectual grounds. And that is why Baba has lifted them on the ground of trance. They go into trance. That's the reason. तो वो भोग लगाते हैं, ध्यान दीदार करते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, समझते हैं उधर जा रहा है, लेकिन उधर नहीं जा रहा है। हाँ, वो सारी इधर की बात है। प्रैक्टिकल में दुनिया है, सूक्ष्म शरीर में कोई दुनिया नहीं है। They offer bhog and they go into trance and they think everything goes up, but there is no such thing. Everything is here itself in this practical world. There is no subtle world. दोनों के मिलने से कार्य हो रहा है। एडवांस पार्टी और सूक्ष्म शरीरधारियों के मिलने से कार्य हो रहा है। एडवांस पार्टी वो भी है, एडवांस पार्टी ये भी है, लेकिन वो एडवांस पार्टी है सूक्ष्म शरीरधारियों की और ये एडवांस पार्टी है प्रैक्टिकल साकार शरीरधारियों की। That advanced party is of subtle bodies, containing subtle bodies. Sukshma sharir. Subtle bodies. Subtle bodies. They come into contact with seed souls and they act accordingly. Actually, this is the story of this practical world. There is no subtle world anywhere else. उनका इमोशनल ग्राउंड जब खत्म हो जाएगा, उनकी बुद्धि में भी सारी बात बैठ जाएगी, तो ये सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा, सूक्ष्म वतन ही खत्म हो जाएगा। सूक्ष्म वतन वास्तव में कुछ है ही नहीं, ये हमारी भावनाओं की दुनिया है उनकी। They work on emotional grounds, and when these emotions are over and they receive the full knowledge, the subtle world will be over. Actually, there is no subtle world. This is the world of emotions. हम लोग भावनाओं के आधार पर नहीं चलते हैं, एडवांस पार्टी वाले। Advanced person, they don't work on emotional grounds. It's on intellectual grounds. वो आत्मा भावनाओं के आधार पर चलती है। भावनाओं के आधार पर चलने के कारण उनको ये सब दिखाई पड़ता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता। It's due to emotions they can see all such things. We cannot see such things. हम लोगों में से भी ज़्यादा कुछ ऐसे हैं जो इमोशनल भी हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो उनको दोनों बातों में विश्वास हो जाता है। In advance also, the seed souls are emotional as well as intellectual, and they believe in both. That is going into trance as well as they believe in knowledge also. तो विश्वास हो जाने के कारण वो उस बात को मानते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा सूक्ष्म वतन। लेकिन मुरली में तो बाबा ने यही बोला है, सूक्ष्म वतन कुछ नहीं है। Because they have faith, they believe there is a subtle world. But in Murli, Baba has said there is no such subtle world. सूक्ष्म वतन तब तक ही है जब तक अंदर की भावनाएं क्रिएट हो रही है। As long as the emotions are created, they think there is a subtle world. और ये तो बाबा ने कह दिया सूक्ष्म वतन 40 वर्ष के लिए रचते हैं। Subtle world is for 40 years. This said in the Murli, na? Yes. टोटली जो इमोशनल आत्माएं हैं उनके लिए 36 से लेकर 76 तक का सूक्ष्म वतन है। From 36 to 76, there is a 40 years for subtle world. टोटली इमोशनल आत्माएं। Those who work totally on emotional grounds. हाँ, और जो इंटेलेक्चुअल भी हैं, थोड़ा थोड़ा इमोशनल भी हैं, उनके लिए 76 से लेकर के प्लस 40 years add. Those are both emotional as well as intellectual. For them, the subtle world is from 76 onwards, 40 years. जब तक बाबा की साकार में प्रत्यक्षता हो तब तक। Until Baba's revelation takes place in practical. जब तक बाबा की साकार प्रत्यक्षता होती है सन 18 तक, तब तक के लिए सूक्ष्म वतन है बस।
प्रत्यक्षता हो जाने के बाद सूक्ष्म वतन खत्म। Until Baba is revealed in practical, there will be subtle world. Once Baba is revealed, the subtle world will be over. हाँ जी। और onwards to 2006.